میں انجیل کا قرضدار پادری فیصل جان کھوکھر ایک بار پھر خدا کے کلام کے ساتھ حاضر ہوں تاکہ خدمت گزاری کا کام کیا جائے، تاکہ مسیح کا بدن روحانی نشو نما پائے۔ آئے ہم خداوند اپنے خدا کے حضور جھکیں اور دعا کریں۔ خدا باپ تیرا شکر کرتا ہوں تیرے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ خداوند آج کلام کے بیج کا جو خدا چھٹا لگایا جائے، زبور 1 اور اس کا مختصر تعارف سیکھا جائے۔ خداوند ہر ایک ایماندار کے لیے باعث برکت ہو، روحانی ترقی کا وسیلہ ٹھہرے، تاکہ اس زمین پر تیری پاک مرضی کو جان کر ہمارا خداوند چلنا، کھڑا ہونا اور بیٹھنا تجھے پسند آئے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے۔ آئے ہم خدا کے کلام میں سے چند ایک سچائیوں پر غور کریں گے، اور جو بڑی ہی واجب اور بہت ہی زبردست سچائی ہے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی بنے گی۔ بائبل مقدس خداوند خدا کا الہی مکاشفہ ہے جو 66 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ ہم ایمانداروں کو یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کا کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا، اس کا ہر ایک حکم، ہر ایک شوشہ، آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن خدا کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ جب ہم پرانے عہد نامے کی 39 کتابوں کو مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو مختلف ناموں اور حصوں سے کیا ہے جی تقسیم کیا گیا ہے، جس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان 39 کتابوں کو ہم خلاصائی طور پر دیکھیں گے تاکہ زبور 1 کی اہمیت کو جان سکیں اور اس سے بہت کچھ سیکھ سکیں۔ پہلی 5 کتب کو شریعت کی کتابیں کہا گیا ہے، جس کو توریت کی کتابیں کہا جاتا ہے، اور اس کا مصنف خدا کا بندہ موسیٰ نبی ہے، جو یہودیت میں کیا ہے جی آج بھی تمام معلموں میں سب سے اعلیٰ معلم اور استاد گنا جاتا ہے۔ اور ان 5 کتب میں ہمیں خداوند خدا جو خالق ہے اس کی تخلیق سے لے کر کیا ہے جی بہت سے وعدے اور نظام اور خدا کا جلال اور اختیار ہمیں نظر آتا ہے۔ یشوع سے لے کر آستر کی کتابوں کو کیا کہا گیا ہے جی تاریخی کتب کہا گیا ہے، جس میں کیا ہے جی ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو تمام جنگوں کا ذکر ملتا ہے اور یہودی قوم کے ساتھ ہونے والے واقعات کا ذکر ملتا ہے، اور اس کے بعد ان تمام کیا ہے جی جسمانی اور روحانی دشمنوں پر غالب آنے کے کیا جی خداوند خدا کے انتظام نظر آتے ہیں، اور بہت کچھ تاریخی طور پر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ خداوند خدا اپنے نظام میں انتظام رکھتا ہے اپنے لوگوں کی حفاظت اور معاونت کے لیے۔ جب ہم ایوب سے غزل و غزلات کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ کتب کیا ہے جی حکمت کی کتب ان کو کہا گیا ہے، جسے وزڈم بکس کہتے ہیں۔ اور ان 5 کتب میں ہمیں کیا جی روزمرہ کی زندگی میں اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، حالات کا سامنا کس طرح کرنا ہے، بہت اعلیٰ درس الہی مکاشفات ملتے ہیں، اور یہ کیا جی بہت اہم ہیں، جن کو کیا کہتے ہیں جی حکمت کی 5 کتب۔ یسایہ سے دانیل نبی کی کتب کو کیا کہتے ہیں جی جب پڑھتے ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو انبیاء اکبر کی کتب کہا گیا ہے۔ انبیاء اکبر سے مراد یہ نہیں کہ وہ کیا جی عہدے میں بڑے ہیں، بلکہ ان کے بارے نبوت کا جو وقت یا دورانیہ لمبا تھا بہ نسبت کیا ہے جی انبیاء اصغر کے۔
होसिया से मलाकी नबी की किताबों को अंबिया असगर की कुतुब कहा गया है, और जब हम मुतालिया करते हैं तो ये तमाम जो अंबिया असगर हैं, ये यीशु मसीह की खास आने वाली दूसरी आमद के बारे में क्या जी हमें खबर देती हैं, सिखाती हैं कि यीशु मसीह क्या जी जब अपनी दूसरी आमद में आएगा और उसमें बहुत सी नबूवतें तकमीली तौर पर क्या है जी पूरी होंगी। इसलिए आए हम ज़बूर 1 का मुतालिया करने से पहले लफ्ज ज़बूर के मतलब को जानेंगे कि उसके उर्दू में लुगवी मायनी क्या बनते हैं। ज़बूर को जब हम देखते हैं तो उसे हम कह सकते हैं हमदो सना, मुकद्दस गीत या मनाजात या शुक्रगुजारियां, दुआएं या मनाजातों का मजमुआ। सो जब हम ज़बूर को पढ़ते हैं तो हम क्या है जी खुदा की हमद करते हैं, खुदा की तारीफ के गीत जो मुख्तलिफ मुसन्निफीन ने अपने दौरे हाजरा में अपने हालात को मद्देनजर रखते हुए खुदा के साथ शख्सी रफाकत और शराकत रखते हुए क्या है जी इन तमाम तहरीरों को मजमूई तौर पर क्या है जी जो 150 ज़बूर है कलम बंद किया। ज़बूर की किताबें, आप सोचते होंगे कि ज़बूर की किताबें, जब हम देखते हैं पुराने अहदनामा में सबसे जो बड़ा ज़बूर है वो ज़बूर 119 है, और बजाते खुद ज़बूर क्या है जी जो तादाद में है वो 150 ज़बूर पाए जाते हैं, और इन 150 ज़बूरों को 5 किताबों में तकसीम किया जाता है, और इन 5 किताबों के क्या है जी मुख्तलिफ मुसन्नफ हैं जिन्होंने इनको तहरीर किया अपने क्या जी उन जिंदगी के अदवार में जब वो जमीन पर जिंदगी बसर कर रहे थे, खुदा के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, खुदा के साथ इल्तजाएं और मनाजातें उसके सामने पेश कर रहे थे, और उनको जब हम देखते हैं तो 5 किताबों में डिवाइड किया गया है। मिसाल के तौर पर किताब पहली को क्या कहते हैं जी ज़बूर जो है जी पहली किताब वो 41 बापों पर मुश्तमिल है और इसे पहली किताब कहा गया है। किताब 2 को ज़बूर 42 से 72 में क्या है जी तकसीम किया गया है। किताब 3 को ज़बूर 73 से लेकर 99 ज़बूर तक क्या है जी तकसीम किया गया है, और उसके बाद किताब 4 को ज़बूर 90 से 106 में क्या जी तकसीम किया गया है। फिर किताब 5 ज़बूर 107 से 150 ज़बूर में इसको तकसीम किया गया है। ज़बूर की किताब टोटल 150 ज़बूरों पर मुश्तमिल है, और इन 5 कुतुब का जब जायजा लेते हैं, मुतालिया करते हैं तो ये बहुत अहम सबक सिखाती हैं, और इन 5 हिस्सों का बड़ा गहरा तल्लुक है तौरेत की 5 कुतुब के साथ, यानी कि पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना के साथ। तो इसका जब हम गहरे तौर पर मुतालिया करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आए हम ज़बूर 1 के मुख्तसर तारफ की तरफ बढ़ेंगे और सीखेंगे कि ज़बूर हमें क्या सिखाना चाहता है। हिकमत की 5 कुतुब को जब देखते हैं जिसमें क्या है जी अयूब, ज़बूर, इमसाल, वाज और गज़लो गज़लात, ये 5 कुतुब क्या जी बहुत अहम हैं। तादाद में इनके बाब बहुत ज्यादा हैं, बहुत से वाकयात इनमें मुंदर्ज किए गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको मुख्तसर इनका खलासा पेश किया जाए जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा रहनुमा होगा कि हम ज़बूर 1 को समझ सकें कि उसके लिखने का मकसद क्या था। जब हम 5 कुतुब का मुतालिया करते हैं, जायजा लेते हैं, तो हमें इसमें जो सच मिलता है सबसे पहले अयूब की किताब में से सीखने का वो ये है। अयूब की किताब दुखों से भरी हुई इस दुनिया में हमें कादरे मुतले खुदा पर भरोसा रखना और दुख सहना और सब्र करना सिखाती है। इसीलिए खुदा का बंदा अयूब कहता है कि क्या हम खुदा के हाथ से
सुख पाएं और दुख ना पाएं। और अयूब सावर पूरी दुनिया में तमाम नस्लों के लिए जो गुजर चुकी हैं, जो आने वाली हैं और जो आएंगी, उनके लिए क्या है जी, बड़ा ही जबरदस्त क्या है जी, ज़ाब्ता है कि इसके मुताबिक इस जमीन पर जिंदगी बसर करें, क्योंकि ये जिंदगी क्या है जी, दुखों से भरी हुई है, आरजी है। इसलिए अयूब हमें सिखाता है कि किस तरह दुख सहना है। जब हम जबूर की किताब को देखते हैं तो जबूर की किताब इस दुनिया में आप सब वाकिफ है, गैर मबूदों, देवी देवताओं और बुत परस्त लोगों से भरी पड़ी हुई है। और ये जमाना क्या है जी, बहुत सी गुमराही में जिंदगी बसर कर रहा है। और हमें जबूर की किताब जिंदा वाहिद खुदा की सच्ची परस्तश करना सिखाती है। इसीलिए जब जबूर 150 का मुताला करते हैं, 5 की 5 कुतुब बयान करती है कि खुदा की परस्तश किस तरह रूह और सच्चाई से करनी है। उस वाहिद जिंदा यहोवा खुदा को जानने की जरूरत है, जो अपने तसलीस के दूसरे 2 इकनूम में जाहिर हुआ, जिसमें खुदा बाप और उसका बेटा हमारा मुनज्जिम यसु मसीह और रूहुल कुद्दस क्या है जी, वो तीसरा इकनूम है जो हमें इस दुनिया में फहम बख्शता है कि हम फैसला कर सके हम किसकी परस्तश करेंगे। इमसाल की किताब जब हम पढ़ते हैं तो इमसाल की किताब हमें बेकायदा, बेसमझ और जाहल जमाने में हमको खुदा की अलाही हिकमत की रहनुमाई में जिंदगी बसर करना सिखाती है। दूसरे लफ्जों में कि इस जाहल जमाने में किस तरह हम खुदा के खौफ में हिकमत और दनाई हासिल कर सकते हैं। और मुसन्नफ जो बजाते खुद सुलेमान बादशाह है, जिसे खुदा ने हिकमत और दनाई दी ताकि वो इस जमीन पर क्या कर सके जी, अपने पीछे आने वाली तमाम उम्मतों, तमाम कौमों और तमाम क्या है जी, ईमानदारों के लिए रहनुमाई छोड़ सके कि हम इस बे समझ जमाने में क्या कर सकें जी, अकल और दनाई के साथ जिंदगी बसर करें। वाज की किताब को जब देखते हैं तो वाज की किताब हमें फानी और फना होने वाले जमाने में बातल और बुतलान में भरी हुई, बुतलान से भरी हुई दुनिया में हमको आरजी और अब्दियत के बारे में और उसके दरमियान इम्तियाज करना सिखाती है कि हम फानी और लसानी में फर्क जान सकें, ताकि इस आरजी जहां में हम इस जहां के हम शक्ल ना बने, बल्कि आलम बाला की चीजों की तलाश में रहकर उस लाफानी और खुदावन खुदा के लसानी कलाम की हदायत में जिंदगी बसर कर सकें। जब हम गजलो गजलात की किताब को देखते हैं तो गजलो गजलात की किताब हमको बेवफा, धोखेबाज, वादा खिलाफ, नफरत से भरी हुई और जिस्म फरोशी की इस नकली मोहब्बत से भरे हुए बेवफा जमाने में हमको हकीकी वफादारी और ताबेदारी और वादा निभाने और कुर्बानी देने और खास कर वो मोहब्बत जो क्या है जी, अनकंडीशनल मोहब्बत है, जिसे क्या जी शरत मोहब्बत कहते हैं, उसके बारे में सिखाती है कि किस तरह बेवफा जमाने में मसीह जैसी मोहब्बत क्या है जी लोगों के साथ करनी है। सो ये 5 कुतुब बहुत अहम है और इन 5 कुतुब में हमें खुदा के कलाम की बहुत ज्यादा क्या है जी, हिकमत और दनाई और रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने का सबक मिलता है। इसलिए आए हम जबूर 1 उसकी जब देखते हैं, कुल 6 आयात हैं, इसके मुख्तसर तारफ पर गौर करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को जानने से पहले, किसी की साथ शख्सी रफाकत रखने से पहले जरूरत है उसके साथ तारिफ हो। सो जबूर 1 का लिखने वाला जो मुसन्नफ है, खुदा का बंदा दाऊद नबी, जिसे कहा गया है परस्तार, कहा गया है बादशाह, कहा गया है रूहानी जंगजू, कहा गया है आला कायद, कहा गया है और खुदावन खुदा का बिलवड कहा गया है, यानी कि खुदा का प्यारा उसे कहा गया है। और जब हम इस जबूर का मुताला करते हैं तो हम जबूर 1 को उसकी 6 आयात को जब तकसीम करते हैं तो उसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं,
کیونکہ اس کی کل 6 آیات ہیں اور 3 آیات کو کیا ہے جی الگ اور دوسری 3 آیات کو جب الگ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ زبور دراصل ہمیں پہلا سکھانا کیا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلی 3 آیات کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ راست باز لوگوں کی طرف اشارہ ہے، جس میں ایمانداروں کو جو لقب یہاں پر خدا کا کلام دیتا ہے وہ کیا ہے جی مبارک، صادق یا درخت کی مانند جو کیا ہے جی پھلدار زیتون کے درخت کی طرف یا ایسے درخت کی طرف اشارہ ہے جو اپنا پتا بھی نہیں مرجھاتا اور وہ پھلاور اور باراور ٹھہرتا ہے۔ اور آخری 3 آیات کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ ادراک اور فہم خدا کا کلام ظاہر کرتا ہے شریروں، خطا کاروں اور ٹھٹھا بازوں کی عدالت کے بارے میں اور ان کی ابدی ہلاکت کا جو انجام ہے اس کے بارے میں تفصیلاً آخری 3 آیات بیان کرتی ہے۔ اور یہ ہے زبور 1 کا مختصر کیا جی مطالعہ کہ جس میں ہم سیکھ سکتے ہیں، ضابطۂ حیات میں دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا کلام کیا کرتا ہے جی ایمانداروں کو کیا ہدایت کرتا ہے، کیا حکم دیتا ہے، کس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ سو آئیں دیکھیں اس کے خلاصے کو۔ زبور 1 اس کی 1 آیت کیا ہے جی پورے زبور کا زبردست خلاصہ ہے جو خاص الخاص ایمانداروں کے لیے ہے۔ جب ہم پہلی بات پر غور کرتے ہیں تو اسے انگلش میں کہوں گا، جو میں نے اس کا ٹائٹل دیا ہے وہ کیا ہے جی واک از اے ڈیوائن ایکسپیکٹیشن۔ ایکسپیکٹیشن سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ توقع۔ جب ہم زبور 1 کو دیکھتے ہیں تو اس کی پہلی آیت میں لفظ واک کا یا چلنا کا استعمال کیا گیا ہے، اور چلنے سے مراد ہے الہی توقع، خدا کی توقع۔ دل کی خواہش کیا ہے ایمانداروں کے لیے کہ وہ اہل ایمان کا استحقاق کیا ہے، پریولیج کیا ہے کہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں stand is a divine application، یعنی کہ اطلاق۔ عملی اطلاق کیا ہے؟ الہی اطلاق کیا ہے؟ کھڑا ہونا، خدائی اطلاق، اہل ایمان کے لیے خدا کی دیکھ بھال اور نگرانی جو خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اسے انگلش میں کہتے ہیں سٹینڈ۔ دی سٹینڈ یعنی کہ سٹینڈ لینا، کھڑے ہونا، قائم ہونا، پختہ ہونا۔ اور تیسرا نقطہ جو کیا جی خلاصائی طور پر وہ کیا ہے جی the sit is a divine proclamation۔ proclamation سے مراد کیا ہے؟ بیٹھنا، یعنی کہ الہی اعلان۔ خدا کا الہی اعلان کیا ہے؟ ڈیوائن پروکلمیشن، جسے کہتے ہیں کہ اہل ایمان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ راست باز ہوتے ہوئے کیا کریں؟ ٹھٹھے بازوں کی مجلس میں جو نہیں بیٹھتا بلکہ خدا کی شریعت میں کیا کرتا ہے جی سکونت کرتا ہے۔ اور ان 3 باتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں پہلی آیت میں تو یہ پورے زبور کا کیا ہے جی وہ بنیادی قدم ہے جس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ خدا ہم سے کیا توقع چاہتا ہے کہ شریروں کی صلاح پر نہ چلیں۔ خدا ہم سے کون سا خدائی اطلاق چاہتا ہے؟ یعنی کہ خطا کاروں کی راہ میں کھڑے نہ ہوں۔ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اس زمین پر اپنی زندگی کو بسر کریں، یعنی کہ الہی اعلان یا خوشخبری یا اشتہار یا کسی کو خبر دینا وہ یہ ہے کہ ایماندار ٹھٹھے بازوں کی مجلس میں نہ بیٹھے، اگر بیٹھے تو صادقوں کی جماعت میں بیٹھے۔ سو یہ ایک زبور کا کیا جی مختصر تعارف اور خلاصہ ہے، اور اس میں ہم اور بہت سے سچ آنے والے جو ہمارے کیا جی سبق ہوں گے سیکھیں گے۔ اب حاصل کلام یہ ہے کہ صلیب سے قبر تک، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ نئے سرے سے پیدا ہونا۔ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت، یعنی کہ خدا ہمیں نئی پہچان اور نئی کیا ہے جی مقام اور نئی حالت بخش دیتا ہے۔ اس لیے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں بائبل مقدس کے مطابق
from the book of Genesis to Revelation, यानी कि पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब तक कोई भी पैदाइशी मसीही नहीं है। हर एक को मसीही बनने के लिए मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की जरूरत है। अगर आपने अभी तक सलीब के पैगाम को कबूल नहीं किया तो आप कभी भी उसके मुर्दों में से जी उठने वाली काली कब्र का सच कबूल नहीं करेंगे। इसलिए आपको नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। इसलिए शख्सी तौर पर अपना इकरार करना कि खुदावंद यीशु मसीह तू मेरा निजात दहिंदा, मेरे गुनाहों की माफी और अबदी जिंदगी की बख्शिश जारी करने वाला खुदावंद खुदा है। जब आप इस सच को कबूल कर लेते हैं तो आप नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। कब्र से जलाल तक के सेहरे तक जाना, इसे हम कहते हैं रूहानी पुख्तगी में जिंदगी बसर करना। बाइबल मुकद्दस इसे कहती है नए और पुराने अहदनामा में रास्तबाजी की जिंदगी बसर करना, नूर में जिंदगी गुजारना, रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में अपनी जिंदगी को उसकी मुख्तारी में दे देना। इसलिए जब तक हम जमीन पर हैं, जिसे पंजाबी में कहते हैं गोद से, मां की गोद से लेकर गोहर तक का ये सफर है, और इसके दुरानियां रूहानी पुख्तगी की जिंदगी बसर करना है। इससे पहले कि हम इस जमीन को छोड़ें और मां की गोद से कब्र और कब्र से उस जलाल के सेहरे यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के सामने खड़े हों, हमें गौर करने की जरूरत है जो 3 बड़े ही गहरे सच खुदा ने कहा है ईमानदारों को करने के लिए ज़बूर 1 में, कि चलना कैसे है, खड़ा कहां पर होना है और बैठना किन के साथ है। इसलिए खुदावंद खुदा इस मुख्तसर कलाम के वसीला से आपकी रहनुमाई करे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। चलना जो लफ्ज पुराने और नए अहदनामा में देखते हैं, जिसे इंग्लिश में वाक कहा गया है, इसका सादा लुगवी मायनी जो अबरानी जुबान से अखज किया जाता है या यूनानी जुबान से सीखा जाता है, वो हमारा तर्ज हयात, कि हमारा चाल चलन, हमारी जिंदगी हम इस जमीन पर कैसे गुजारें। और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। खड़ा होने से मुराद किसी अकीदे या ईमान या खुदावंद खुदा के दिए हुए हुक्म पर कायम होना, पुख्ता होना, उसे इंग्लिश में स्टैंड कहते हैं और उर्दू में खड़ा होना। और ये खड़ा होना हमारी जिंदगी के ईमान की वजाहत करता है कि हम उस चट्टान पर खड़े हैं अक्लमंद आदमी की तरह, या फिर उस रेत के ढेर पर अपना मकान बना रहे हैं बेवकूफ आदमी की तरह। और ठट्ठेबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। बैठना बहुत लफ्ज अहम है यूनानी और अबरानी जबान में, जिसका तल्लक रफाकत और शराकत के साथ है, एसोसिएशन के साथ है। और इसीलिए खुदा के कलाम में हमें पुराने और नहदनामा में मिलता है कि हमें इस बात का तायन करना है कि हम किसके साथ बैठते हैं, शरीरों के साथ, खताकारों के साथ, या ठट्ठेबाजों के साथ, या फिर फैसला करते हैं सादकों, ईमानदारों और खुदा खौफ लोगों के साथ। इसलिए आखिर में आपसे सवाल है, आप अपनी जिंदगी का सफर कैसे गुजार रहे हैं? मां की गोद से गोहर तक और गोहर के बाद खुदा के जलाल में आप दाहिनी तरफ खड़े होंगे या बाहिनी तरफ? दाहिनी तरफ जो भेड़ों का तमसीली तौर पर और अलामती तौर पर बयान किया गया है, वो ईमानदारों की तरफ इशारा है जिन्होंने यीशु मसीह के लहू से अपने जामे धोए हैं। वो खुदा की दाहिनी तरफ अदालत के दिन खड़े होंगे, और बाईं तरफ वो है जिन्होंने यीशु मसीह के कफारे को और उसकी निजात के पैगाम को और बाइबल मुकद्दस की सच्चाई को रद्द कर दिया। उनको बकरियां कहा गया है, यानी कि वो दूसरी मौत का मजा चखेंगे। अब आपसे ये सवाल है कि आप अपनी जिंदगी का सफर कैसे गुजार रहे हैं, या कि
کس طرح اس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ کیا آپ گود سے صرف گوہر تک زندگی بسر کریں گے یا پھر گوہر سے آگے تک بڑھیں گے جو کیا ہے جی جلال کا صحرا ہے؟ خداوند خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے حکمت اور دانائی دے اور فیصلہ کرنے والے بنے کہ آپ کس کے ساتھ چلیں گے، کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کس کے ساتھ بیٹھیں گے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلہ سے سننے والے تمام ایمانداروں کو بڑی برکت دینا، یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔